اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود دختران کراچی، میری ماؤں، بہنوں اور میڈیا کے تمام دوست، السلام علیکم۔ گزشتہ 2-3 ہفتے سے شہر کراچی میں جگہ جگہ اس کالے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف ٹاؤنز میں احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، اور آج ہماری ان ماؤں اور بہنوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس احتجاج میں وہ اپنا حصہ بھی ڈالیں گی۔ اور یہاں پر قرۃ العین باجی نے اپنی گفتگو کے دوران یہ فرمایا کہ یہ بھائی جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب یہ بہنیں نکلتی ہیں تو ہمارا خوف نکلتا ہے، تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ یہ وہی بہنیں اور مائیں ہیں کہ جنہوں نے بدترین آپریشن میں بھی خوف ان کو محسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی ہمت مجتمع رکھی، اور جب نوجوان نہیں نکل پا رہے تھے تو یہی مائیں بہنیں تھیں جو اس پرچم کو لے کر روڈ پر نکلتی تھیں۔ یہ وہی مائیں بہنیں ہیں کہ جب ماورائے عدالت قتل ہونے والے نوجوانوں کو لحد میں اتارنے کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے والدین یا بھائی نہیں ہوتے تھے، تو یہ وہ مائیں ہیں جو ان کو لحد میں بھی اتارتی تھیں، یہ وہ ذمہ داری ادا کرتی تھیں۔ یہ وہی مائیں بہنیں ہیں کہ جب پکا قلعہ حیدرآباد میں قرآن سر پہ نکلی تو یہی ظالم حکومت تھی اس وقت بھی کہ جس نے ان کے سینوں پر گولیاں برسائی تھیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا تھا۔ ان کا حوصلہ ہے تو ہمارا حوصلہ ہے، ورنہ ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں مختصر بات کر کے اجازت دوں گا اور اس قانون کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب یہ سندھ اسمبلی میں 2013 کے سندھ لوکل گورنمنٹ کے جو بل تھا اس کے اندر ترمیم پیش کی گئی تو ہم نے اس وقت میں کہا کہ یہ غلط ہے، اور جس انداز میں وہ ترمیم پیش کی گئی ہم نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، آپ کو گفتگو کرنی چاہیے تھی، آپ نے تمام رولز آف بزنس کو معطل کیا اور جھوٹی اور جعلی اکثریت کی بنیاد پر اس قانون کو پاس کرایا۔ ہم اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں، اور نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ اس شہر کی، اس صوبے کی، اس پاکستان کی تمام چیدہ تنظیموں نے، سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے اس قانون کو مسترد کیا۔ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، ہر سیاسی جماعت نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ ہم آپ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم آپ سے کس بات کی گزارش کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو
तो साथ में लाड़काना के भी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दो। हम जब आपसे ये कहते हैं कि कराची के अस्पतालों का इख्तियार यहाँ के नुमाइंदों के पास होना चाहिए, तो हम साथ में ये भी तो कहते हैं कि दादू के नुमाइंदों को भी उनका हक मिलना चाहिए। आप वो वडेरा गैंग हो जो अपनी कौम के भी हुकूक गस्ब कर रहे हो, जो अपनी कौम का भी इस्तेहसाल कर रहे हो, लसानियत की बात करते हो। बिलावल भुट्टो साहब, बल्कि बिलावल जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, आपने बड़े जोश में ये कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मुझे कराची में दहशतगर्दी नजर आई है और दहशतगर्दों की हुकूमत नजर आई है। बिलावल साहब, अभी आपकी उम्र ही कितनी है? बच्चे हैं आप। जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेलें काटी हैं। आप हमसे क्या मुकाबला करोगे? बिलावल जरदारी साहब, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से नहीं, जब से पीपुल्स पार्टी बनी है, ये वडेरा गैंग बना है, जब से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। आप अक्सरियत की बात करते हैं कि अक्सरियत है आपकी और अपोजिशन अकलियत में है, तो वजाहत कीजिए कि क्या फैसले सिर्फ अक्सरियत करती है, अकलियत से मशावरत नहीं की जाती? और अगर आपकी इस दलील को मान भी लिया जाए तो जरा बताना पसंद करेंगे कि जब 71 में इलेक्शन हुआ था तो मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत किसकी थी? शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग की अक्सरियत थी। उस वक्त आपने क्यों नहीं अक्सरियत की बात को माना? जहां आपका फायदा हो वहां अकलियत के हुकूक, और जहां आपका फायदा हो वहां अक्सरियत के हुकूक। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, ये दो अमली सियासत नहीं चलेगी। और आज भी मैं देख रहा था कि उनके एक रहनुमा टेलीविजन पर ये फरमा रहे थे कि 2008 में हमने कड़वा घूंट पिया, इनको हुकूमत में शामिल किया। बिजनेस कम्युनिटी को मुत्तहदा ने धमकियां दी कि हुकूमत में शामिल नहीं किया तो हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। बड़े अफसोस की बात है सईद गनी साहब, आप 2008 की बात कर रहे हैं, नहीं शामिल करते हुकूमत में। क्यों आए थे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए? चले 2008 को तो छोड़ दीजिए, अरे अभी चंद माह पहले सेनेट के इलेक्शन में आपकी पूरी पार्टी के रहनुमा इसी बहादुराबाद आए थे कि उनके सेनेट के उम्मीदवार को वोट दे। हमने मना कर दिया, पेशकशें की, हमने मना कर दिया कि हमें आपकी कोई पेशकश मंजूर नहीं है। आप कराची, हैदराबाद, लाड़काना, दादू के लोगों को उनका हक दीजिए और इस शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों को, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, बलोची हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, सबको इख्तियार दीजिए। आप कहते हैं कि कराची के मेयर को कचरा उठाने का इख्तियार चाहिए, तो ये 4 साल और उससे पहले 13 साल की आपकी हुकूमत रही, आपने मेयर को तो इख्तियार दिया नहीं, लेकिन ये कचरा उठाने का इख्तियार वजीर आला अपने हाथ में लेकर बैठे रहे। उस वक्त आपको हया और शर्म नहीं आई? आपको कोई शर्म नहीं आई? असेंबली में खड़े होकर मैं उस बयान की शदीद मजम्मत करता हूं। वजीर आला सिंध साहब, मुराद अली शाह साहब, ये जो लसानियत का आप रोना रो रहे हैं कि ये लसानियत फैला रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। लसानियत हम नहीं फैला रहे हैं, लसानियत आप फैला रहे हैं। पूरे सूबे के अंदर आप सिर्फ एक कौम से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, उनको पोस्टिंग दे रहे हैं, उनको ही सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमें कोई शिकवा नहीं है, आप सिंधी भाइयों को जितनी नौकरियां देना चाहो दो, लेकिन इस शहर में बसने वाले
मुहाजिर, पठान और पंजाबियों ने क्या कसूर किया है? उनको आप क्यों नहीं नौकरियां देते? उनको क्यों नहीं आप जुडिशरी में जगह देते? उनको क्यों नहीं आप तालीमी इदारों में जगह देते? ये लसानियत हमने नहीं फैलाई है, ये लसानियत आपने फैलाई है। 1973 में आपके ही रहनुमा ने कोटा सिस्टम नाफिज किया था। दही और शहरी की तकसीम आपके रहनुमा ने की थी, हमने नहीं की थी। 1974 या 5 में आपने सूबे के अंदर लसानी बिल पास किया था, उर्दू के खिलाफ आपने बिल पास किया था। ये लसानियत और ये नफरत की सियासत आप करते हो, हम नहीं करते। हम तमाम कौमियतों के हुकूक की आवाज बुलंद करते हैं। हम कहते हैं कि अगर सिंधी भाई मजलूम है तो उसको भी उसका हक मिलना चाहिए, और अगर मुहाजिर के साथ ज्यादती हो रही है तो उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। और आखिर में मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं, जो आप ये जज्बात में आकर ये मुंह से आपके झाग निकल रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहे हैं और आप ऑल फॉल बकना शुरू हो गए हैं। तहम्मुल रखिए, तहम्मुल रखिए। पीपुल्स पार्टी के वडेरा गैंग तहम्मुल रखे, अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पाकिस्तान, आप जिस अक़लियत की बात कर रहे हो कि असेंबली में ये अक़लियत है, आप कहते हो कि अक़लियत को फैसला नहीं करने देंगे, तो सुन लीजिए मुराद अली शाह साहब, बिलावल जरदारी साहब, सुन लीजिए। हिंदुस्तान में भी इसको अक़लियत कहा जाता था, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को अक़लियत कहा जाता था। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू एक तरफ थे और जवाहरलाल नेहरू के मुंह से हमने आजादी छीनी थी। यही अक़लियत थी जिससे ये पाकिस्तान बना के दिखाया था, और यही अक़लियत आपसे अपने हिस्से का हर चीज आपसे वसूल करेगी और सूद के साथ वसूल करेगी। भागने नहीं देंगे। कितना ही आप शोर मचाते रहो, कितना ही आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, ये सफर शुरू हो चुका है। माए बहनें रोडों पे निकल चुकी हैं, ये काफिला थमने वाला नहीं है और आपका पीछा करेंगे आखिरी हद तक आपका पीछा करेंगे और इस बिल को खत्म करवा के दम लेंगे। हम स्लो रफ्तार से, धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि शहर में बदअमनी हो, ऐसे हालात पैदा हो कि किसी का नुकसान हो, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारा हक छीनते रहो और हम खामोश तमाशाई बने रहें। अपने हिस्से का पूरा हिसाब लेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। ये अक़लियत ये पाकिस्तान बना सकती है तो ये अक़लियत अपने हिस्से का हक भी ले सकती है। और आप कितना ही शोर मचाते रहो, इल्जाम लगाते रहो तशद्दुद का, आप दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते रहो, तो इस शहर कराची के लोग भूले नहीं हैं कि दहशतगर्दी किन के घरों से निकलती थी। ये कराची के लोग भूले नहीं हैं किसके लोगों ने जहाज अगवा किया था पाकिस्तान का, कौन जुल्फ़िकार का रहनुमा था, लोग भूले नहीं हैं। किसने भारत को, यहाँ के पाकिस्तानी भाइयों को जो लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उनकी लिस्टें किसकी हुकूमत ने, किसके वजीर ने इंडिया को पेश की थी, हम भूले नहीं हैं। ऑयल रिफाइनरीज पर किसने हमले किए थे रॉकेटों से, और हम 27 दिसंबर को भी नहीं भूले हैं कि किस तरह तुमने हमारी माओ बहनों की बेहुरमती की थी, किस तरह इस शहर कराची को और हैदराबाद को जलाकर राख का ढेर कर दिया था। बस
بلاول زرداری صاحب بات اپنے جذبات کو قابو رکھیں اور جتنی آپ کی عمر ہے اور جتنا آپ کا قد ہے اتنی ہی بات کریں. بات آگے بڑھائیں گے تو اس سے زیادہ آگے جائیں گے اور اس سے زیادہ سخت آپ کو جواب ملے گا. اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ پورے شہر کے اندر اس پیغام کو پھیلائیں. ایک ایک گھر میں یہ میسج دیں کہ ہم اپنے حقوق کسی کو بھی غصب نہیں کرنے دیں گے اور اپنے حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ہاتھ اٹھا کر مجھے اس بات کا یقین دلائیے کہ آپ اس جدوجہد میں شامل ہیں اور ہم اپنی منزل تک پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو سندھو دیش کے حامی ہیں, یہ جو سندھو دیش کے نعرے لگاتے ہیں اور جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم کچھ اور سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائیں, جو دل چاہتا ہے مراد علی صاحب جو سوچنا ہے سوچئے. آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں, انہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا. اس پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی نظر کو نوچ لیں گے اور آپ کے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہونے دیں گے. جیے متحدہ, جیے پاکستان.